आज हम देश भर के 250 से अधिक समुदाय संकुलों के करीब 1000 पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। कार्यक्रम के आरंभ में डीएवी पब्लिक स्कूल पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली के विद्यार्थी मंगलाचरण एवं स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। आज हमारा
अभिनंदन करते सब मिल हम, अभिनंदन करते सब मिल हम। आज आपका, आज आपका, आज आपका, आज आपका, सब मिलजुल कर गान करें हम, सब मिलजुल कर गान करें हम। आज आपका, आज आपका, आज आपका, अभिनंदन करते सब मिल हम, अभिनंदन करते सब मिल हम, अभिनंदन करते सब मिल हम, अभिनंदन करते सब मिल हम। धन्यवाद डीएवी स्कूल। अब मैं श्री मनोज आहूजा जी, अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्वागत भाषण देने एवं सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी सहोदय कॉम्प्लेक्सेस के प्रतिनिधि और सीबीएसई के अधिकारीगण, एनईपी 2020 को लागू करने में विद्यालयों की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए आयोजित इस संवाद में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हमारे बीच माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम एनईपी 2020 को उसके सिफारिशों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने सीबीएसई तथा इसके संबद्ध विद्यालयों को हमेशा हौसला अफजाई करते रहे हैं। हम उनके आभारी हैं कि वह सीबीएसई को हर मुद्दे पर अपनी अमूल्य सलाह देते आ रहे हैं। सर पहले शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सहोदय स्कूलों के साथ सीधे बातचीत करने की पहल की है। इनके नेतृत्व में सीबीएसई ने बच्चों पर बोझ और तनाव कम करने के लिए करिकुलम और पढ़ाने के तरीके में सुधार लाने के कई उपाय किए हैं। महोदय, सीबीएसई परिवार की ओर से हम सब आपका स्वागत करते हैं। फॉर ऑल दी presidents, secretaries and others from India and abroad representing the Sahodaya complexes. The origin of Sahodaya complexes was immediately after the 1986 education policy. And this is the new education policy which has come up after a gap of 34 years. And befittingly, it aspires to prepare students for the 21st century. The Sahodaya complexes embody a spirit of cooperation, and this new education policy also highlights the notion of school complexes, which will share with each other, care for each other, and help each other. And I think in that sense, Sahodaya complexes have been a forerunner. CBSE has made an attempt through Sahodaya complexes to bring the spirit and the nuts and bolts of the new education policy. It is very important that all of us who are associated with education understand the nuances and the spirit of the new education policy so that it can be implemented in proper manner for the benefit of students. As you are all aware, one of the marked aims or the aspirations which is there in the new education policy is to bring about a shift from rote learning to holistic development of students and provide them with the 21st century skills. Critical thinking, creativity, communication, collaboration, media literacy, financial literacy, digital literacy are some of the aspects every student should know. Besides cognitive skills, skills in social, emotional skills, so that the new education policy emphasizes on all that. And as you are all aware, CBSE since the last 2 years has come out with a number of manuals on these aspects. In fact, there are very good 2 training programs also on experiential learning and competency-based education, which is available for teachers. And a massive training program, which will be necessary for the teachers, would be also done by CBSE during the current academic year, where all these manuals would be taken up
discussed and made in a form so that these can be implemented in these schools. The schools have been contributing significantly to these manuals and have also started implementing these aspects in their schools. And I am sure there will be very good resource persons, not only for CBSE schools, but for schools across the country about the new pedagogy which will be there. Another major challenge which the schools will have to come up with, not a challenge, but a new thing, would be the emphasis on early childhood care and education. The NCERT is coming out with a framework for that. So this will be implemented in a manner for the benefit of children. Research has shown that the cognitive development in children takes place in their earlier years. So this will be a very timely and a good intervention which the schools will do. Emphasis is being laid on the foundational literacy and numeracy mission, which will be announced very soon. And in that, it has been seen that unless children have these basic numeracy and literacy skills in their early years, it is very difficult for them subsequently to understand and comprehend. So it's very necessary that we impart these skills to our children. And I am sure schools will have to attune themselves, focus on this to ensure this. Besides the new curriculum pattern, which will be 5, 3, 3, and 4, which most of you would be aware about. You are aware your relationship with CBSE is in the form of board exams, and a lot of reforms are proposed for assessment. It has to be made more formative, more competency based, and test higher order skills rather than rote skills. And for that, we have already announced and we are working that in the board exams from year to year, 10% of the questions every year would increase, which will be competency based and test higher order thinking skills. And work has started on that aspect. Besides, the board exams would shift towards being standardized criterion. They will be criterion based testing and would set global benchmarks, means they would be accepted globally in terms of their standards in measuring competencies. Besides this, as a lot of emphasis is on social, emotional, and other skills, emphasis would be laid on a holistic progress report card rather than just reporting a child's cognitive abilities. And for that, we will be working with the schools very closely, holding training programs, piloting this within the current year. And because it is important that formative assessment is given a larger role, and the different abilities, capacities, skills of children are captured in the form of providing feedback to the child. And this is something very important. And the CBSE has also started on working on the assessment of broad competencies at the stage of 3, 5, and 8. And this will help the schools to get feedback, and so that in the early years at different levels, they can understand and use this as a developmental feedback to improve their teaching, learning, pedagogy in their schools. All this would naturally need a lot of capacity building. And as I said, this online learning has provided us a platform where the reach can be increased manifold, and we would be focusing on it during this current year. CBSE is also focusing on bringing about systemic reforms in its processes and its interaction with the stakeholders. The main focus of implementation naturally will be on schools, will be on teachers, will be on principals to provide pedagogical leadership in areas of curriculum and pedagogical reforms, which will mark a major transition in our schooling system, in assessment, in making education more contextual, and in preparing students who can go out in this world, be self-confident individuals, and contribute meaningfully to society. Besides ensuring that education becomes inclusive and is equitable. So these are the large goals which the new education policy sets before us. It has set a roadmap, and now it is for all of us to come together to ensure that what it envisages actually transforms on the ground. So towards the end, I would like to thank the Honorable Minister for holding this meeting with the school leaders. And in fact, as I told earlier, this is the first time that the Honorable Minister is having this kind of a discussion. So it has significant meaning, because this is a priority for the government, and we would not waste time in implementing this policy so that the benefits are available to all the children and the citizens of this country. Thank you so much.
एंड सर अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना विजन समझाकर हमारा मार्गदर्शन करें। मंत्री महोदय। सहोदया के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं जो देश और दुनिया भर से जुड़े इसके सदस्य हैं, मैं आपको अभिनंदित कर रहा हूं। और इस अवसर पर सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष मनोज आहूजा जी, जिनका भी हम लोगों को उद्बोधन मिला, बहुत सारी बिंदुओं पर बहुत स्पष्ट तरीके से जिन्होंने बात को रखा है और नई शिक्षा नीति में किस तरीके से हमको आगे मार्ग आगे प्रशस्त करना है, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में और सभी बिंदुओं को स्पर्श करते हुए उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया है। मुझे इस बात की खुशी है कि 1000 से भी अधिक सीबीएसई स्कूलों के प्रमुख लोग जुड़े हैं और आपके माध्यम से 22,000 सीबीएसई स्कूल जुड़े हैं और उनके माध्यम से आज लगभग 2.5 करोड़ सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र छात्रों के अभिभावकों तक ये संदेश जुड़ा हुआ है। तो मैं इन 2.5 करोड़ छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को और देश और दुनिया में फैले तमाम सीबीएसई बोर्ड के सभी प्राचार्यों को, प्रबंधन समिति के लोगों को और सहोदय केंद्रों के जो संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, सदस्यगण हैं, उन सभी को मैं इस अवसर पर बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं आपका 26वां आपका जो राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन था उसमें मैं आपको मिला था, आपसे बातचीत हुई थी और उसी दिन मैंने सीबीएसई के चेयरमैन मनोज जी से कहा था कि बहुत अच्छा है और ये सहोदय को किस तरीके से आगे और संवाद के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसी दिन आपने ये तय किया था कि सभी सहोदय के अधिकारियों के साथ, सभी प्राचार्यों के साथ, प्रधानाचार्यों के साथ और सभी व्यवस्था तंत्र से जुड़े उन प्रमुख लोगों के साथ हम संवाद करेंगे और जो नई शिक्षा नीति जो बहुत लंबे समय के बाद भारत केंद्रित और बहुत व्यापक परिवर्तन के साथ, नए सुधारों के साथ, जिसको आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म करके संबोधित कर रही है, वो जो नई शिक्षा नीति है, जो नए भारत के उदय के रूप में आज जिसको पूरे देश ने स्वीकार किया है और जो बड़े बहुत व्यापक परामर्श के बाद आया है। मुझे लगता है नवाचार का ये दुनिया का अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। संभवतः अभी तक पूरी दुनिया में शायद ही किसी नीति पर इस सीमा तक का विचार विमर्श हुआ हो कि जहां गांव से लेकर के और संसद तक, जहां ग्राम प्रधान जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, जहां राजनीति से लेकर के समाज सेवियों तक, समाज शास्त्रियों तक, जहां अध्यापक शिक्षक से लेकर के शिक्षाविदों तक, वैज्ञानिकों से लेकर विशेषज्ञों तक और जनप्रतिनिधियों से लेकर के छात्रों तक और छात्रों के अभिभावकों तक, शिक्षकों को यदि स्कूली से लेकर उच्च तक देखेंगे तो 1000 से भी अधिक जहां विश्वविद्यालय हों, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हों, 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक जहां अध्यापक हों और 15-16 लाख स्कूल हों और अमेरिका की कुल आबादी जितनी नहीं होती उससे भी अधिक जिस देश में छात्र छात्राएं हों, उस देश का वैभव समझा जा सकता है। और वो देश पूरे विश्व में वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होता है और वही देश होता है जिसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय होते हैं। जब पूरी दुनिया में एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्ध जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्यां सर्वमानव, पूरी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, जीवन मूल्य, आचार विचार और सौहार्द को सीखने के लिए भारत की धरती पर आते थे। आज पुनः उस भारत का पुनर्जागरण हो रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की बात की है, वो स्वर्णिम भारत जो सुंदर भारत होगा,
जो सशक्त भारत होगा, जो स्वस्थ भारत होगा, जो सशक्त भारत होगा, उसके साथ ही आत्मनिर्भर भी होगा, श्रेष्ठ होगा और एक भारत होगा जो पूरे विश्व में अपनी उसी पहुंच के साथ, उसी मार्गदर्शन के साथ जो हजारों हजारों वर्ष पहले उसने पूरी दुनिया के मानवता का मार्गदर्शन किया था, जो ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया था, वो धरती जहाँ पर शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत पैदा होता हो, वो धरती जो आयुष्यो वेदा आयुर्वेद की बात करता हो, जो पूरे विश्व के नागरिकों के सुख के लिए, उनके शारीरिक निरोगता के लिए जो संजीवनी का काम करता हो, वही देश जो गणित, बीजगणित और ज्यामिति के लिए पूरी दुनिया को सूत्र देता हो, आर्यभट्ट का जहाँ जन्म होता हो, जो भास्कराचार्य का जहाँ जन्म होता है, जहाँ अणु और परमाणु का विश्लेषण उस सदी में हजारों हजारों वर्ष पहले ऋषि कणाद जैसे व्यक्ति पैदा हुए, जहाँ रसायन शास्त्री नागार्जुन जैसे पैदा हुए, जिस देश पर अभी तक सबसे बड़ा भाषाविद, भाषा वैज्ञानिक पाणिनि पैदा हुए हों, और जिस देश में योग के लिए जिसने आज पूरी दुनिया जिस योग के पीछे खड़ी हो गई, जहाँ पतंजलि का जन्म हुआ, मैं यदि बौधायन सहित तमाम 12 मेर सहित यदि मैं उन लोगों की चर्चा करूं तो शायद दिन गुजर जाएगा। वो वैज्ञानिक, वो शिक्षाविद, वो हर क्षेत्र में जिन्होंने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है, वो इसी देश की धरती पर पैदा हुए हैं। इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है वो भारत केंद्रित हमने इसको कहा है, क्योंकि भारत का वो वैभव है, यदि वो अपने उस वैभव को लेकर के नवाचार और अनुसंधान के साथ आगे बढ़ता है तो पूरी दुनिया का वो मार्गदर्शन कर सकता है। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष भी महसूस होता है कि हमारी एनईपी को लेकर के पूरी दुनिया में उत्सुकता है, पूरी दुनिया में उसको लेकर के एक खास प्रकार की चर्चा शुरू हुई है। तमाम देशों के लोग जब हमसे जुड़ रहे हैं और इस देश की शिक्षा नीति के बारे में कैम्ब्रिज जैसे दुनिया का श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में से एक, तमाम उन विश्वविद्यालयों ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, दुनिया में ये सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में ये आया है। मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर जब पूरी दुनिया उत्सुकता से भरी है और जिज्ञासा से युक्त है, ऐसे वक्त पर जब भारत अंगड़ाई ले रहा है नए बदलाव का, पूरे विश्व के शिखर पर जाने का, तो उस भारत की वो जो शिक्षा नीति है, नीति जो बनी है, जिसको सबने स्वीकार कर दिया, उस नीति को अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री जी से अचानक जो मेरी मुलाकात हुई, हम लोगों की मीटिंग हुई और बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि ये तो इसकी जरूरत है आज दुनिया को। अभी कुछ दिन पहले विभिन्न देशों के लोगों से, संयुक्त अरब अमीरात से हमारी बात हुई। अभी कुछ दिन पहले मनोज जी के ही साथ हम ओमान के साथ जुड़े थे। अभी कल परसों में फिर सऊदी अरब के विभिन्न देशों के साथ, अन्य देशों के साथ भी हम लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया में कुरसावो के प्रधानमंत्री जी ने एक वेबिनार में ही घोषणा की कि हम चाहते हैं कि ये नई शिक्षा नीति को हम अपने देश में भी लागू करें। पूरी दुनिया में इसको लेकर के बहुत उत्सुकता है। अब आवश्यकता ये है कि जहाँ एक वो नीति बनती है, नीति खूबसूरत होती है, लेकिन उस नीति को क्रियान्वित करने वाले जो ये 20 की कड़ी, ये असली योद्धा के रूप में यही होते हैं। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करने के लिए आपके बीच आया हूं कि आप वो लोग हैं। देखिए, सीबीएसई में देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में सीबीएसई को लेकर के लोग गर्व महसूस करते हैं। सीबीएसई को मैं समझ सकता हूं कितना दबाव रहता है सीबीएसई स्कूल को खोलने के लिए, उससे जुड़ने के लिए बच्चे में उत्सुकता रहती है वो कैसे सीबीएसई के पाठ्यक्रम को अपनाए, और तमाम देश के अंदर प्रतिस्पर्धा रहती है। सीबीएसई बोर्ड का स्कूल चाहिए, क्योंकि जहां भी बड़े इंटरव्यूज में जाते हैं, जहां भी, वहां कहीं भी वो अपने को, जो बच्चा आत्मविश्वास से लबालब भरा रहता है और जो जिसकी प्रखरता पूरे देश देखता है, तो ऐसी सीबीएसई बोर्ड से जुड़े रहने वाले ये सहोदय, मैं अभी देख रहा था, जब मैं देख रहा था कि सहोदय सबका, आपका जो नाम ही है वो सहोदय, सामूहिक उत्थान चाहते हैं। सहोदय, उदय,
सबका उत्थान। अब ये जो सबका उत्थान है, अब भारत की असली जो शिक्षा है जिसको अभी हम ला रहे हैं, आपने तो शुरू कर दिया उसको सहोदय से। ये भारत सभी के उत्थान की हमेशा परिकल्पना करता है। पूरी दुनिया को ये अपना परिवार मानता है। सेना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु महाविद्विषामहे। हम तो साथ साथ मिलकर के चलेंगे, साथ साथ पराक्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे, साथ मिलकर के खाएंगे, बांट करके काम करेंगे, और एक दूसरा कहीं जहां कमजोर होता है उसको पकड़ करके साथ आके बढ़ने की मनसा ललक हमारे साथ है। इधर हमारे साथ वो है कि अरुण, यहाँ मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा देने वाला लोग हैं इस देश के। ये है हमारा विजन। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की परिकल्पना की है। पूरी दुनिया में कौन देश, कौन विचार ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता हो और उस परिवार के लिए ये कहता हो कि नहीं, जब तक कोई भी व्यक्ति दुखी है तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। मेरा संकल्प है कि जब तक आम व्यक्ति जो अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला व्यक्ति है, उसके दुख को जब तक हम दूर नहीं कर देते तब तक सुख का एहसास करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हम साथ सुख का एहसास करना चाहते हैं, सुख को भी मिलकर के बांटना चाहते हैं, हम दुख को भी मिलकर के बांटना चाहते हैं। हमारी वो परंपराएं रही हैं कि सुख बांटने से हमेशा बढ़ता है, और जब दुख और कष्ट होता है तो उसको भी मिल करके बांटते हैं तो वो खत्म होता है, वो कम होता है। तो ये जो परंपरा रही है, ये मानवता की परंपरा रही है। हमने मशीन नहीं बनाया है, हमने छात्र को मशीन बनाया नहीं है, बल्कि हमने मानव बनाने की प्रक्रिया की है। आज क्यों पूरा विश्व भटक सा रहा है, क्यों ऐसी परिस्थितियों में खड़ा है, जब यूनेस्को की डीजी भी इस बात को लेकर के परेशान होती हूँ, क्यों अनुशासनहीनता हो रहा है, हिंसा का वातावरण क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मिलकर के ऐसी बातें को सोच रहे हैं। क्योंकि हमने कभी सोचने का उसकी आधारशिला खड़ी ही नहीं की। हमने तो उसको डिग्री दी, हमने उसको केवल सर्टिफिकेट पकड़ाया और कहा कि तुझे कुछ करना है, बस क्या करना है कुछ। उसको उसके जो संस्कार हैं, जो उसके मानव मूल्य हैं, जो उसकी परंपरा है, कहाँ जोड़ा हमने उसको। हमने तो जमीन से उसको काट दिया। जमीन से वो उड़ तो रहा है लेकिन जमीन की आधारशिला पर खड़ा नहीं है। पूरे विश्व का व्यक्ति इसीलिए हताशा, निराशा और कुआशा से होकर के गुजरता है। आतंकवाद की इस राह के ढेर पर खड़े होकर के, और पूरी दुनिया में मानवता कई बार तरस जाती है। और इसलिए ये जो संकट है, ये संकट मूल्यों का संकट है। और इसलिए हमने शुरू से आज क्यों हमारे गांधी को पूरी दुनिया सत्य, प्रेम और अहिंसा के रूप में चाहती है कि नहीं, तभी संसार ठीक रह सकता है। जब तक कि आम व्यक्ति में सौहार्दता नहीं हो। कहाँ से आएगी? आसमान से टपक करके सौहार्दता नहीं आ सकती है। ये प्रेम कहाँ से आएगा? कहीं किसी पिंजरे में किसी दुकान पर प्रेम नहीं मिल सकता है, खरीदने से नहीं हो सकता है। और ये जो भाव प्रकट होंगे, ये भाव हमारे विचारों के भाव हैं, ये हमारे संस्कारों के भाव हैं, हमारे परंपराओं के हैं। इसीलिए ये जो नई शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति जो स्कूली शिक्षा से, जो मातृभाषा के साथ बच्चे के साथ हम 10+2 की इस अवधारणा को खत्म कर दिया। हम 5+3+3+4 जो लाए हैं, हम बिल्कुल नए कलेवर के साथ इस को लाए हैं कि जो बच्चा है, ये जो बच्चा है और जो यूनेस्को बार बार जिस बात को कहता है कि नहीं, अपनी मातृभाषा में सर्वाधिक अभिव्यक्ति होती है। और वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कहते हैं कि 3 वर्ष से और 6, 7, 8 वर्ष तक के बच्चे का सर्वाधिक मस्तिष्क का विकास होता है। हम इन क्षणों को खोना नहीं चाहते हैं, हम इन क्षणों को अपने हाथ से हटने नहीं देना चाहते हैं। हम उस छात्र, हमारी निधि है छात्र, ये भारत केंद्रित, छात्र केंद्रित है, ये उस बच्चे पर केंद्रित है ये सारी शिक्षा नीति, क्योंकि वही हमारी धरोहर है। उसको हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये जो पावर हाउस है आपका, आपके हाथ पे है इसका, ये जो इंजन है, ये आपका जो पावर हाउस है, जहां से ये ऊर्जा ने बाहर निकलना है, वो उसका उपयोग करना चाहते हैं हम। कि वो प्री प्राइमरी स्कूल से भी पहले वो जिस तरीके से बालवाड़ी में, आंगनवाड़ी में उसके संस्कार, खेल खेल में जिस तरीके से वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके मस्तिष्क में जो चीजें हैं वो कैसे बाहर निकल सकती हैं, और वो जो संस्कार है, उसकी परंपरा कैसे आगे करके धीरे से हम उसको पूरा का पूरा जितना भी उसके अंदर है उसको बाहर निकाल करके, और न केवल मानवता के लिए
न केवल अपने देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक अच्छे नागरिक के साथ साथ एक विश्व मानव के रूप में जो आत्मविश्वास से लबालब हो, जो संस्कारों से युक्त हो, जिसका विजन हो, जिसमें मिशन करने की ताकत और क्षमता हो, जो विश्व को अपना परिवार मान सके, जो उस परिवार की दुख और दर्द को दूर करने की ताकत रख सके, जिसमें विजन भी हो और विभिन्न समस्याओं के निदान करने का मिशन भी हो। इस तरीके का जो छात्र हम नीचे से उठा करके उसको लाना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा है, वो यदि कोई प्रदेश उच्च शिक्षा तक भी अपनी मातृभाषा में ले जाना चाहता है तो बहुत अच्छा वो ले जा सकता है। और अपनी मातृभाषा के साथ साथ एक भारतीय भाषा भी, अभी कितनी खूबसूरत भाषाएं दी हमें हमारे देश के संविधान ने हमको, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, असमिया, क्या क्या नहीं दिया है। मुझे लगता है कि जो सुंदर अनुसूची 8 में हमारी भारतीय 22 भाषाएं हैं, हम एक दूसरे से लेकर के जोड़ते हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमारा एक उत्सव खत्म हुआ, वो था कला उत्सव, कला का महोत्सव। पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों के नृत्य, गायन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये कितनी विविधता है मेरे देश में। इसलिए वो जो ज्ञान की परंपराएं थी वो खत्म हो रही हैं। वो बहुत सारे जो चीजें थी हम जिस पर पूरी दुनिया में शिखर पर थे वो लुप्त हो रही हैं। इसलिए फिर भारत का जो जागरण हो रहा है, ये नई शिक्षा नीति उसका वाहक है। और मैं समझता हूं उस नई शिक्षा नीति को अंतिम छोर तक पहुंचाने के आप योद्धा हैं। ये योद्धा का काम ही हो सकता है। आप वो बीज की श्रृंखला है जो आपके माध्यम से इस बड़े विजन को नीचे तक जाना है। मुझे भरोसा है क्योंकि जब भी मैं सीबीएसई बोर्ड की संस्थानों की समीक्षा करता हूं तब मैं आशा से और जागृत होता हूं। मुझे खुशी होती है, मुझ में और आशाएं प्रदीप्त होती हैं कि नहीं, सीबीएसई का जो छात्र है, जो अध्यापक है, जो प्रिंसिपल है, जो प्रबंधन है, जो उसका पाठ्यक्रम है, जो उसके प्रतिभाशाली छात्र है, जिसके अंदर सभी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, हम जिस लाइन को उसको देंगे वो उस पर महारत हासिल करेगा। और इसलिए ये जो शिक्षा है ये कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन से शुरू कर रहे हैं। वो केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान नहीं चाहिए। अभी यदि देखें आप तो मेरा बच्चा डिग्री को लेकर के और दर दर भटक रहा है। वो डिग्री का उसके जीवन में क्या उपयोग है ये जरूरी है। वो जिस बात को भी पढ़ रहा है उसके जीवन में उसका व्यावहारिक पक्ष क्या है। और इसीलिए कक्षा 6 से ही वोकेशनल जो एजुकेशन लेंगे और वो भी इंटर्नशिप के साथ लेंगे। वहाँ की जो क्षेत्रीय उसकी संपदाएं हैं उससे उसका दर्शन होगा, उससे उसका जुड़ाव होगा। कहीं यदि जड़ी बूटियां हैं, कहीं पिछड़े क्षेत्र में वन क्षेत्र होगा, कहीं जैव विविधता होगा, कहीं पर्यटन होगा, कहीं पानी के साथ जवानी का जुड़ाव होगा, कहीं वन्य जंतु होंगे, कहीं तकनीकी की दृष्टि से होगा, कहीं जो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं तकनीकी दृष्टि से कैसे करके उससे वो जुड़े और फिर उसका विजन उसको ऊपर उठाए। ये जरूरत है। हमारा वास्तुकला में पूरी दुनिया में हम समृद्ध थे, हम किस क्षेत्र में पीछे कभी भी नहीं रहे। और हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, अभी मैंने देखा कोई पीछे के दिनों में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसे जो वहां से प्रधानमंत्री जो प्रशिक्षण शिक्षण अधिगम हुआ कि जो देश के चुनिंदे 60 छात्रों को जो विज्ञान, गणित और कला में ये 3 क्षेत्रों के बालक और बालिकाएं जो स्कूली शिक्षा के हमने छाटे थे 60, और जो इसरो से हमने शुरू किया था और 14 दिन की अपनी यात्रा में उपराष्ट्रपति जी ने उसका समापन किया था। क्या भव्यता थी, आप सोच नहीं सकते। ये ध्रुव तारा, हमने उन बच्चों को उनका नाम दिया है ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारे हैं हमारे यहाँ देश में बिखरे हैं हमारे ध्रुव तारे, इन्हीं की तो उपयोग करने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले जब ये टाई हैकाथॉन किया हमने, क्योंकि बच्चों के बीच वो क्या खिलौना बनाना चाहते, कैसे खिलौना बनाना चाहते, तो एक पर 2 काम करना चाहते। वो भारत की संस्कृति, उसकी परंपराएं, उसके महापुरुष, उसके ऐसे उत्सव पुरुष जिनको सोच करके, बोल करके, देख करके, पढ़ करके नई प्रेरणा मिलती है, नई दिशाएं मिलती हैं, साहस मिलता है, ताकत मिलती है, आगे बढ़ने का
अवसर मिलता है। ऐसे लोगों को किस तरीके से उसमें समाहित कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। और वैसे भी इस देश में एक आंकड़ों के जो एक सर्वेक्षण के तहत सर्वे के तहत लगभग 10,500 करोड़ के जो खिलौने होते हैं वो खपत होती है, और उसमें 80% खिलौने बाहर से आ रहे हैं। तो इतना बड़ा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, उस बड़े लोकतांत्रिक देश में कोई चीज बाहर से आए तो ये तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। और इसलिए इस चुनौती का मुकाबला करना है। जबकि यदि पूरे विश्व के फलक पर देखेंगे तो 7 लाख करोड़ का व्यवसाय केवल इन खिलौनों का है। क्यों नहीं कर सकते हम तो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप के मार्ग से होकर के जाते हैं। हमको सूत्र दिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। हमारी लीडरशिप में दम है, उसमें विजन भी है, और मैदान खाली है। मेरे जो बच्चा क्या नहीं कर सकता है। और इसलिए हमने वो टाई हैकाथॉन भी किया है। हमने बच्चों के बीच ये ड्रग हैकाथॉन किया है। अभी हर चीज को आगे बढ़ा। अभी पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये कला का उत्सव मनाया है। अद्भुत प्रतिभाएं हैं हमारे बीच। और इसलिए ये जो वोकेशनल एजुकेशन है, उसी के साथ साथ जहाँ अक्षरी और अंक ज्ञान करेंगे, वहीं उसको अन्य सांस्कृतिक से लेकर के और खेल से लेकर विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियां। तो 3 चीज हो गई। एक तो उसका पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम जो संख्या ज्ञान और अक्षर ज्ञान को आगे बढ़ाता है। नंबर 2 वो पाठ्यक्रम जो उसको अन्य गतिविधियों में सांस्कृतिक से लेकर खेल से लेकर के उसके जीवन को बहुआयामी बनाता है। और तीसरा उसके हस्तकला, उसका जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, वो कैसे करके शुरू से ही उसके अंदर जिस लाइन पर वो जाना चाहता है उसको हम विकसित करके बाहर निकाल सकते हैं। और मूल्यांकन भी देखिए तो अद्भुत है। 360 डिग्री का होलिस्टिक मूल्यांकन है, जिसमें अध्यापक मूल्यांकन करेगा, अभिभावक भी उसका मूल्यांकन करेगा, छात्र स्वयं का भी मूल्यांकन करेगा, लेकिन उसका बगल में बैठे रहने वाला साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा। अब आप समझ सकते हैं, एक बच्चा छात्र जब स्वयं ही अपना मूल्यांकन, हम जो बड़े लोग भी हैं, जब अपने अकलुषित तरीके से जब हम अपना मूल्यांकन करते हैं, कौन व्यक्ति है अपने से ज्यादा कौन व्यक्ति समझ सकता है कि कहाँ कमजोर है और कहाँ कमजोर नहीं है। यदि उसने अपना मूल्यांकन करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है धीरे धीरे अपनी कमियों को खत्म करता चला जाएगा। करें तो मूल्यांकन जरूरी है, ये आदत भी डालनी है, ये संस्कार भी है, ये परंपरा भी है कि जब हम अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तो उससे बड़ा पाठ ही हमको कुछ नहीं मिलता है। आदमी योद्धा होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जहां कमजोर कड़ी है उसको मुझे ठीक करना है। तो बच्चा जब स्वयं ही अपना मूल्यांकन करेगा, और यदि उससे चूक हो गई तो उसका साथी मूल्यांकन करेगा। उसको पता है कि साथी भी मूल्यांकन करेगा तो संबंधों को भी प्रगाढ़ रखना है। इसको भी मुझे पूरी तरीके से बताना है और साबित करना है कि भैया मैं भी कुछ हूँ। साथ साथ में हम पढ़ रहे हैं, नहीं मैं ये भी आता है तो ये भी आता है तो ये भी आता है तो ये भी आता है। तो संबंध भी बहुत अच्छे चाहिए, संस्कार भी अच्छे चाहिए, तो उसकी जो विज्ञता है, जो उसके नॉलेज है, वो भी चाहिए। इन तीनों का मिश्रण उसका साथी, उसको हमेशा ये याद रहेगा, नहीं साथी भी यदि देगा मुझे नंबर तो इसके साथ इसको मुझे साबित भी करना पड़ेगा कि मैं ही अच्छा हूं। जब दोनों परस्पर, साथी भी मूल्यांकन तब करेगा दूसरे का जब उस मूल्यांकन करने के लायक होगा। एक दूसरा साथ बढ़ा रहे हैं, साथ उठा रहे हैं, एक दूसरे का मूल्यांकन करने के लिए एक दूसरे को आपस में चर्चा करते हुए बढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं। और फिर यदि किसी उससे भी चूक हो गई तो फिर अभिभावक को मालूम है मेरा बच्चा कितना कमजोर है, किस चीज पे कमजोर है, और फिर अध्यापक को भी मालूम है। तो अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर के, वो छात्र और उसका साथी, ये चारों मिलकर के किस तरीके से उसका निर्माण करते हैं, इसको अभी तो जब शुरुआत होगी और विभिन्न गतिविधियों के साथ शुरुआत होगी तो मुझे लगता है कितना खूबसूरत दृश्य वो होगा। किस तरीके से एक छात्र बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनकर के विभिन्न क्षेत्रों में उभरता हुआ एक सितारा होगा हमारा। और इसलिए वो मूल्यांकन भी हमने किया है, और इधर वोकेशनल से लेकर के और विभिन्न शिक्षाओं को भी किया है। तो जिस तरीके से आगे विषयों को भी वो फ्री छूट है, किसी भी विषय को ले सकते हैं, शोध और अनुसंधान में छूट है। आगे उच्च शिक्षा में यहाँ तक कर रहे हैं कि जो जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है, उसके लिए भी पूरा मैदान खाली है। और यदि उसको प्रस्तुति वर्ष 1 वर्ष में छोड़ के जाना पड़ता है तो निराश और हताश नहीं होगा। 1 वर्ष में भी उसको डिप्लोमा मिलेगा
1 वर्ष में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष में जाता है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष में छोड़ के जा रहा है तो डिग्री मिलेगी। लेकिन यदि वो 1 वर्ष में फिर आकर के कहना चाहता है, अब मेरी परिस्थितियां ठीक हो गई, मैं अपने भविष्य को सुधारना चाहता हूँ, तो आइए ना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। 2 वर्ष में आना चाहते हो, फिर आगे बढ़ना चाहते हो तो आइए, कोई रोक टोक नहीं है। आपका जो क्रेडिट है, हमने एक ऐसा बैंक उसके लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी चाबी उसके पास होगी, जब चाहे वो अपने बैंक को खोले, जहां उसने छोड़ा था उसको और आगे बढ़ा सकते, वो संपत्ति है। और तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाएंगे। जब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जा रहा है, इस देश में शोध और संस्कृति की परंपरा चाहिए। अभी वो जो परंपरा है, इस समय जो हम लोगों के बीच इस कुछ कालखंड ऐसा आया जब होड़ लगी है, पैकेज की होड़ लगी है, जिसको जितना पैकेज बड़ा पैकेज मिल रहा है वो उतना बड़ा जो है आदमी बन रहा है। अब ये पैकेज की होड़ नहीं, पेटेंट की होड़ चाहिए, पेटेंट चाहिए। हमको अपनी चीजों को पेटेंट करना है, हमारी चीजों को सब छिन्न भिन्न करके दुनिया के लोग उसका उपयोग करते रहे और फिर हम उनसे लेकर के और उसी का गुणगान करते रहे हैं। अब जरूरत आ गई है, देश स्वाधीन हो गया। 70 अभी हमने 2 दिन पहले हमने देश के 72वें गणतंत्र दिवस मनाया है और 70-72 वर्षों में कोई भी राष्ट्र अपनी खोई हुई ताकत को खड़ा कर सकता है, इसकी जरूरत है। और वो खोई हुई ताकत, क्योंकि हमारे पास ताकत थी, हमारे देश को विश्व गुरु कहते थे पूरी दुनिया में, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और नवाचार का तो ये सबसे बड़ा केंद्र था और इसलिए अध्यात्म से लेकर के विज्ञान से लेकर क्या कमी थी, हमारी गीता भी आज पूरी दुनिया में जाती है। और इसलिए हमारे वो ग्रंथ जिन पर पूरी दुनिया के लोग शोध और अनुसंधान कर रहे हैं, चाहे हमारे वेद हों, पुराण हों, उपनिषद हों, आयुर्वेद हों, योग हो, पूरी दुनिया उसके पीछे खड़ी है। उनको लगता है कि इसके अंदर कुछ है। यही तो कारण है कि जर्मनी 12-12, 14-14 विश्वविद्यालयों को संस्कृत के बना रही है, ताकि वो जो संस्कृत में जो ग्रंथ हैं, क्या क्या ज्ञान विज्ञान उसके अंदर है, कोई पढ़े और उसको बाहर निकाले। हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब कुछ है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से हमारे छात्रों, मुझे अपने छात्रों पर भरोसा और आप पर बहुत भरोसा है, क्योंकि कोविड काल में जब पूरी दुनिया संकट से गुजर रही थी, मेरा देश भी उससे अछूता नहीं था। ऐसे वक्त पे ऑनलाइन एजुकेशन हम लाए 33 करोड़ छात्रों के लिए। अब सोच नहीं सकता कोई, जब दुनिया के देशों ने 1-1 वर्ष अपने को पीछे कर दिया था, परीक्षा देने की लेने की तो हिम्मत नहीं थी, तब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जिसमें 135 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या होती है और 33 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं होती हैं, उन्हें ताकत के साथ खड़े होकर के समय पर परीक्षाएं करवाई, पूरी ताकत के साथ। ये मेरे अध्यापक और छात्र और अभिभावक, इन 3 ने मिलकर के, और जो ये टीम है, सीबीएसई बोर्ड की टीम है, जो शिक्षाविद है हमारे और जो अधिकारी हैं, रात और दिन खप करके पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत पर जब भी ऐसी आपत्ति आएगी, भारत एक साथ खड़े होकर के, उसमें वजन भी है और उसमें हर परिस्थिति का मुकाबला करने की ताकत भी है। और वही कारण है कि इस ऐसे वक्त पर हमने जेईई की परीक्षा, पहले तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को कराया जो छूट गई थी, उन परीक्षाओं को कराया। हमने कोरोना का ठप्पा नहीं लगने दिया, हमने कहा परीक्षा देगा और छात्र को वो परिस्थितियां दी। समय पर कॉपियों की जांच हुई, समय पर रिजल्ट घोषित किया और इसके लिए मैं सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन को, उनकी पूरी टीम को, सीबीएसई से जुड़े सारे के सारे इन संस्थानों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पूरे विश्व में अपने ढंग का एक उदाहरण दिया। हमने जेईई की परीक्षाएं करवाई, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। हमने नीट की परीक्षा, दुनिया का कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा कराने में हम सफल रहे। आपको मालूम है कि जब पीछे के समय जब बिहार में चुनाव हुआ तो बिहार के चुनाव आयुक्तों ने कहा कि नहीं, जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नीट और जेईई की परीक्षा कराई, उन्हीं मानकों पर हम यहाँ चुनाव कराएंगे। करोड़ों लोगों ने मतदान दिया था और बहुत अच्छे तरीके से वो लोकतंत्र का एक बड़ा मजबूत उदाहरण वो भी है। और इसलिए हमने उस ऑनलाइन जो हमने 15-20 साल के बाद जाकर के शुरू करना था, हमारे अध्यापकों ने और अभिभावकों ने मिलकर के उस छात्र को बचाया और छात्र ने भी पूरी ताकत के साथ
लीडरशिप लेते हुए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा, उसको स्वीकार किया और उस चुनौती का मुकाबला किया। देश के प्रधानमंत्री जो बार-बार कहते हैं कि नहीं, जब भी कोई बड़ी चुनौती होती है और उसका डट कर के मुकाबला होता है तो अवसरों में तब्दील हो जाती है। मैंने उनकी प्रेरणा से, मेरे बहुत सारे लेख थे, मैंने एक अलग ही लेख लिखा और मैंने कुछ प्रमाण दिए उसमें कि देखिए जहाँ ये हर कदम पर चुनौती थी, ताकत के साथ खड़े हुए तो अवसरों में बदल गया। हमारे देश के अंदर वेंटिलेटर की कमी थी, बाहर से आता था, अवसर हुए, मेरे IITs ने अनुसंधान रात दिन खपे, हमने आज वेंटिलेटर देश के अंदर बाहर भी जा रहा है। मास्क बाहर पता ही नहीं था, बहुत कम था, आज मास्क अपने देश से विदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को दिए। आपको मालूम है कि टेस्टिंग किट जो जिसकी पहले 3-3 दिन में टेस्ट होता था और हमारे यहाँ 3 घंटे में ऐसे टेस्टिंग किट हमारे छात्रों ने शोध अनुसंधान, हमारे अध्यापकों ने शोध अनुसंधान किया कि बहुत कम समय में और 100% रिजल्ट देने वाली टेस्टिंग किट की। और अभी तो आपने देखा वो टेस्टिंग किट भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न देशों को भेजा कि ये लो, हम तो वो देश हैं जो पूरे विश्व की चिंता करते हैं। पूरे विश्व ने इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में किस तरीके से लोगों ने गुणगान किया कि नहीं, ऐसे वक्त पर भारत ने हमको संभाला है। और अभी जब वैक्सीन दी और एक नहीं 2-2, आज भी पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के पीछे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के उस विजन को, उस संकल्प शक्ति को और हमारे देश के उन प्रतिभाशाली छात्र और अध्यापकों के पीछे आज भी कैसे कायल हुई है पूरी दुनिया, ये इसका उदाहरण है। तो इसलिए जब जब ऐसी चुनौती आती हैं और हम ताकत के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि मैं जब ये कहता हूं कि अध्यापक योद्धा होता है, योद्धा है, क्योंकि वो फ्रंट पर अपने पूरी ताकत के साथ उसकी ये जो सेना है, ये छात्र है, उसके पीछे खड़े होते हैं। योद्धा ताकतवर रहता है तो पूरी फौज भी उसके पीछे से ताकत लेती है, प्रेरणा लेती है। और मुझे गर्व होता है अपने देश के अध्यापकों पर, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक से लेकर के शिक्षा मंत्री तक की मैंने यात्रा ये पूरी की है, तो मैं अच्छे से जान सकता हूँ अध्यापक को, शिक्षक के मन में किस तरीके से छटपटाहट रहती है, कैसे वो अपने छात्र को खड़ा करता है। यदि उसका छात्र कहीं बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर आता है तो खुशियों की आंखों और उसके आंसू छलक आते हैं, आंखों को देखा जा सकता है उस समय, जब अपने बच्चे से भी ज्यादा बढ़ करके वो अपने छात्र को मानता है। यह हमारी ही ताकत हो सकती है। और इसीलिए आपने देखा कि यदि चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसे चंद्रगुप्त जैसे पैदा करते, हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे देश की परंपरा रही है। तो इसीलिए हमने अध्यापक को हमेशा कहा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरी दुनिया में यही हमारा देश है जो गुरु को ईश्वर के रूप में हमेशा उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कि यदि भगवान भी सामने खड़े हो जाएं और बगल में गुरु जी हों तो छात्र को कतई भी कोई शंका नहीं कि पहले मैं चरण वंदना वो भगवान की करूं कि अपने गुरु की करूं। गुरु के चरणों में प्रणाम करके कहता है, गुरु आप नहीं होते तो मुझे गोविंद भी नहीं मिल पाते, भगवान भी नहीं मिल पाते, तुमने रास्ता दिया तभी तो मैं यहाँ तक पहुंचा। और इसलिए ये जो धारणा है हमारी मजबूत धारणा है, ये हमारी धारणा, हमारी भावना केवल शब्दों की भावना और धारणा नहीं है, हमने अपने जीवन को तिल तिल खपा करके वो चीज सामने प्रस्तुत किया है। और इसलिए हम भारत केंद्रित जब बोलते हैं तो हम उन्हीं विचारों पर, उन्हीं आदर्शों पर, उन्हीं तत्वों पर, उन्हीं विश्लेषणों पर, आधारशिला पर खड़े होकर के और आगे बढ़ने की बात करते हैं। इसीलिए हमने कहा ये जो नई शिक्षा नीति है ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, इंटरएक्टिव भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंक्लूसिव भी है तो इनोवेटिव भी है। ये इसमें सब कुछ समाया हुआ है, अंतिम छोर तक के बच्चे को भी रह गए। और उसमें भी जो इसकी आधारशिला बनाए, उसमें इक्विटी है, क्वालिटी है और एक्सेस, और इसमें जवाबदेही भी है और बहनीयता भी है। यदि आप उसके आधारशिला को देखेंगे तो आज पूरी दुनिया हर्ष से, उल्लास से गौरवान्वित हो रही है। मैं ये समझता हूं कि ये ऐसा अवसर आ गया जब इतिहास के पन्नों पर आप जैसे लोगों का नाम इसलिए अंकित रहेगा क्योंकि इस नई शिक्षा नीति के ध्वजवाहक के रूप में
क्रियान्वयन के रूप में आप जैसे लोग खड़े होकर के बहुत कम समय में इसको धरती पर क्रियान्वित करने की ललक रहेगी हमारे बीच। हम अपना टैलेंट को भी खोजेंगे। हम टैलेंट के साथ उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट भी देंगे और उसके बाद टैलेंट और कंटेंट दोनों को जोड़ करके पेटेंट निकालेंगे। वो होगा जो दुनिया को दिखाई देगा। और मुझे भरोसा है कि हम जब इसको शुरू करेंगे, शुरू कर दिया है, बहुत सारे प्रदेशों ने काम शुरू कर दिया। सीबीएसई बोर्ड ने भी रात दिन खप करके इस काम को शुरू कर दिया है। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, पूरी दुनिया में इसका ये जो खुशबू है इसकी, ये शिक्षा नीति की, जो हमारे संस्कारों की, जो हमारे विजन की, हमारे ज्ञान की, विज्ञान की, अनुसंधान की, वो बचपन से ही अनुसंधान शुरू होगा। क्यों नहीं कर सकता? बच्चे में तो सबसे ज्यादा सोचने की प्रखरता होती है। अभी जब केबी के स्कूल का अभी राष्ट्रपति भवन में हमारे केंद्रीय विद्यालय है, तो केंद्रीय विद्यालय जो सीबीएसई बोर्ड का है, उसमें एक लैंग्वेज लैब का उद्घाटन करने के लिए हम और महामहिम राष्ट्रपति जी की श्रीमती, जो देश की पहली महिला है, वो जब गए तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। वो बच्चे जो 10वीं का छात्र छात्राएं हैं, वो उन्होंने ऐसे ऐप बनाए हुए हैं जो कहते थे कि बस ये हमको कुछ दिन और दीजिए, पूरे राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा भी हम यही से तय कर लेंगे, हम हर चीज को ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उन बच्चों का आत्मविश्वास देख करके ऐसा लगता है कि क्या नहीं हो सकता मेरे देश के अंदर अब। और इसलिए मुझे लगता है कि अब वो अवसर आ गया जो अपने को भी पहचानने की जरूरत है, अपनी भूमिका को भी तय करने की जरूरत है, और अपने टारगेट को भी 24 घंटा अपने में संजोने की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से आप लोग जुटे हुए हैं बहुत अच्छा है। और मैं देख रहा था कि आपके सहोदय के जो आपके जो ध्येय हैं, जो काम है, जो गतिविधियां हैं, विभिन्न विषयों पर शिक्षकों, छात्रों, प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आप गोष्ठी कर रहे हैं, कार्यशालाएं कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। गृह परीक्षाओं में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां आप करवाते हैं, इंटर स्कूल प्रतियोगिता हमको करा रहे हैं, प्रदर्शनियों को लगवाते हैं। ऐसे संयुक्त कार्यक्रम जो आपका था कि एक दूसरे को कैसे मदद की जा सकती है, एक दूसरे का ज्ञान पारस्परिक किस तरीके से लिया जा सकता है, एक ऐसा जो क्षेत्र है जो कहीं यदि अध्यापक गणित का बहुत अच्छा है, बहुत प्रतिभाशाली है, तो कोई बिना संकोच किए वो गणित की ऑनलाइन सभी को दे, कोई विज्ञान का बहुत अच्छा है, जो कला का अच्छा है, तो एक दूसरे की मदद कैसे ले सकते हैं हम, वो आप कर रहे हैं और इसको और तेजी से करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में इसको काफी ताकत और बल दिया गया है। बोर्ड समय समय पर जो जारी करता है निर्देश और परिपत्र, उसको भी आप लागू करने के लिए कोशिश करते हैं। और तमाम सांस्कृतिक गतिविधियां मैं देखता हूं कि आप लोग करवा रहे हैं। किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता जागरूकता, शांति और सामुदायिक विकास, ये आपकी गतिविधियों के वो आंगन जिसको दुनिया को जरूरत है, पूरी दुनिया को जरूरत है। और सीबीएसई बोर्ड इसके लिए पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मार्गदर्शक हो सकता है, एक ऐसा प्रेरणा का केंद्र हो सकता है। अभी भी है, अभी भी मैं देखता हूं कि दुनिया के तमाम देशों से बड़ा दबाव आता है, सब हमको ये सीबीएसई बोर्ड का स्कूल दे दीजिए। और आज भी हम 28 देशों में अपने सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को चला रहे हैं, और जिसमें न केवल हिंदुस्तान के लोग बल्कि वहाँ के श्रेष्ठतम जो लोग हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे तकनीशियन हो, उनके भी बच्चे हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। ये हमारे सीबीएसई बोर्ड की खुशबू। और इसलिए, और वो यदि उसको आप बना करके रखा है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है, क्योंकि आप रात और दिन खपते हैं। मैंने कहा ना, नीतियां तो अच्छी बनती हैं, लेकिन नीतियों को क्रियान्वित करने का जिनमें मादा होता है तभी वो उसकी खुशबू फैल पाती है। नहीं तो बातों में कुछ नहीं बन रखा है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बातों का क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और नीति बहुत सुंदर बनी है, आपके अनुरूप बनी, आपसे पूछ के बनाई है हमने पूरी दुनिया, कोई ये नहीं कह सकता आज देश के अंदर कि साहब ये नीति क्या बनाई, हमने तो सबको मिलकर के नीति बनाई है।
इसीलिए तो इसमें इतनी खूबसूरती है। उसके बाद भी पब्लिक डोमेन में डाल करके 2.25 लाख सुझाव आए थे हमारे, और 2.25 लाख सुझावों को भी एक एक सुझाव पर व्यापक विश्लेषण हमने किया, और तब जाकर के शिक्षा नीति आई। और इसलिए पूरा देश ने, शायद देश की आजादी के बाद इतना उत्सव किसी नीति के बारे में हुआ होगा, मुझे लगता है ये पूरे शिक्षकों ने, अभिभावकों ने, छात्र कितना खुश है। मेरे से कहते हैं जो बड़े लोग हैं, निशंक जी ये पहले क्यों नहीं लाए आप या इन चीजों को, 10 साल पहले कभी आ जाती ये चीजें तो हमको भी मजा आता। आप भी सोचते होंगे जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छा है अब हम अपने भावी पीढ़ी को वो अवसर दे रहे हैं, और मेरा भरोसा है कि हम विधिवत तरीके से कैसे करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझको खुशी है कि आज आप सभी लोग बैठे हैं। हम मनोदर्पण लाए जब हमको ये लगा, जब अध्यापकों के, अभिभावकों के बहुत सारे सुझाव आए, मानसिक रूप से जो है अवसाद में जा रहा है छात्र, अभिभावक, अध्यापक तक भी, तो हम लोग मनोदर्पण लाए। दुनिया का पहला उदाहरण है ये। पूरी दुनिया में कोरोना काल में अपने बच्चों को मानसिक अवसाद में न जाने दें, अपने अभिभावक को, अपने अध्यापक को हम लगातार पीछे दौड़ते रहे हैं आपके। कोई दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन हम किसी न किसी से हम संवाद नहीं करते रहे और उसकी फीडबैक नहीं लेते रहे। मनोदर्पण आज जो है पूरा जिसमें 500 से भी अधिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स 24 घंटे आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके छात्रों के साथ जुड़े हैं, आपके अभिभावकों के साथ जुड़े हैं, और फ्री, टोल फ्री जो है एक ऐसा नंबर भी है जिस पर जब चाहे तब 24 घंटे में आप जो है बात कर सकते हैं। आप वो पोर्टल है मनो दर्पण का, जिसपे आप सारी गाइडलाइंस हैं, क्या क्या करना है, उसके बाद भी यदि आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। प्रज्ञाता जो है जो जिसको लाए हैं अभी बहुत अच्छे तरीके से निर्देशन क्या है, अभी एनसीईआरटी की एक बैठक थी तो उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये हर कदम पर हमारी स्कूली शिक्षा के सचिव अनीता करवाल हो, मनोज जो आहूजा हैं चेयरमैन, 24 घंटे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि दुनिया में हिंदुस्तान इन विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा अपने शिक्षा व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया, वर्ष को खराब नहीं होने दिया, छात्र के साथ खड़े भी रहे हैं। कई बार बदले हमने, परिस्थिति जन्य हम कई बार निर्णयों को बदलते रहे, और हमको लगा कि अभी ये होने वाला है, नहीं इससे बेहतर ये होगा, तुरंत हम बदलते चले गए। यदि इस बीच को ही देखेंगे कितनी बार हम लोगों ने हर कदम पर अभी ये होना है, आगे एडवांस प्लानिंग बनाना, और उसमें आपका साथ था। मुझे मालूम है कि आपने जिस तरीके से रात दिन खप करके काम किया तो उसको मैं भूल नहीं सकता, और इसीलिए मैं समझता हूं कि आज का ये फिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज की बैठक है, आपकी कार्यक्रम है आपका, मुझे भरोसा है कि आप एक टाइम बाउंड समयबद्ध तरीके से नीचे तक ऐसे करके ये जा सकते हैं। आपके सुझाव भी कुछ आए हैं मनोज जी से, मैं कहूँगा कि यदि और कोई सुझाव भी लेने की जरूरत है या आपको देने की आवश्यकता है तो हम आप दें, लेकिन ये वर्ष क्रम वाइज किस तरीके से इस नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हम ताकत के साथ कर सकते हैं, ये आपसे होकर के गुजरेगा। और सीबीएसई बोर्ड इसके लिए पूरे देश के अंदर नंबर 1 ऐसा बोर्ड होगा जो पूरी ताकत के साथ कह सकेगा कि हाँ, देश में व्यापक परिवर्तन करने वाली और जो पूरी दुनिया का सबसे बड़े रिफॉर्म वाली जो नई शिक्षा नीति है उसका रास्ता सीबीएसई बोर्ड से होकर के गुजरता है। तो निश्चित रूप में पूरा देश इस पर भरोसा भी करता है, करेगा भी, और बहुत खुशी भी होगी देश को। अभी जो कई आपके मन में भी बहुत बातें होंगी, शंकाएं होंगी, वो होगा कि सीबीएसई की जो 10वीं और 12वीं की जो कक्षा की जो अगले कब जो है तिथि घोषित होगी, तो मुझे लगता है कि जो चेयरमैन सीबीएसई बोर्ड से मेरी बात हुई है तो 2 फरवरी 2021 को उस मंगलवार को जो तिथि है उसकी हम लोग घोषणा करेंगे।
और मुझे लगता है कि जो संबद्धता होती है आपकी, कई बार कठिनाइयों से गुजरते हैं, मेरे तक भी बात आती है, तो ये भी सीबीएसई बोर्ड का बहुत बड़ा निर्णय है कि सीबीएसई बोर्ड ने अब ऑनलाइन सभी चीज़ों को करने का रखा है और जो स्वखुलासा मानदंडों के आधार पर ये अपना उसका समीक्षा भी करेगा और संबद्धता की प्रक्रिया को भी पूरा करेगा, जो स्वतः स्फूर्त स्वचालित होगी। ये भी दूसरा बड़ा निर्णय है। और तीसरी बात ये बहुत अच्छी है कि 45 वर्ष पुराना सीबीएसई बोर्ड आज पूरी दुनिया में, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उसने अपनी ख्याति को अर्जित किया है, विश्वसनीयता को अर्जित किया है और अपने उत्कृष्ट पाठ्यक्रम से और अध्यापकीय अनुशासन से जिस तरीके से काम किया वो एक उदाहरण बना है। इसलिए 45 वर्षों का जो जिन छात्रों का है जो बाहर गए हैं देश और दुनिया में है, उन सभी छात्रों का ये जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटल करने का भी सीबीएसई बोर्ड ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है कि ये करेंगे। 1975 में जो अध्ययन किया 1975 से 45 साल हो गए, तो आसानी से उनको अपने सर्टिफिकेट भी मिल सकेंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो चौथा है कि सीबीएसई एनईपी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आने वाले वर्ष में 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी। तो ये भी बड़ा अभियान है, क्योंकि शिक्षक यदि ठीक से प्रशिक्षित हो गया सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण पर भी बहुत ध्यान दिया है। आपको याद होगा कि पीछे के समय में जब ये बात हो रही थी और जब नई शिक्षा नीति को हम ला रहे थे, बहुत सारे लोगों ने शिक्षकों पर बहुत सारे बिंदुओं को कहा। तो मैंने तब ये कहा था कि हाँ, इस देश का शिक्षक का यदि मूल्यांकन भविष्य में करना होगा तो आईएएस बनना तो बहुत सरल होगा, लेकिन अध्यापक बनना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कहा था इस बात को, क्योंकि वो अध्यापक जिस सीमा तक का उसका पूरा चौतरफा एक योद्धा की तरह रहना चाहिए उसको। वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता अध्यापक। वो अध्यापक हो सकता है जिसमें अभिप्सा होगी, वो हो सकता है जिसका वजन होगा, जिसमें संकल्प शक्ति होगी, जिसमें प्रखरता होगी, जिसको विपरीत परिस्थितियों में भी नई दिशा देने की ताकत होगी, क्षमता होगी। और इसलिए जो खड़े होकर के छात्र को इस भरोसे के साथ कह सके कि हाँ, ये विश्व का मानव बनेगा मेरा छात्र, और छात्र को भरोसा हो सके कि मैं यदि अपने इस अध्यापक के पास आ गया तो मैं पूरी दुनिया में शीर्ष पर जा सकता हूँ। ये भरोसा दिलाने वाले अध्यापक ही हो सकता है, और ऐसे अध्यापकों की जरूरत देश को है। अभी भी मेरे अध्यापकों ने जिस तरीके से काम किया, मुझे गर्व होता है अपने अध्यापकों पर। इसलिए मैंने कहा कि कोरोना काल के ये भी हमारे योद्धा ही नहीं, महायोद्धा हैं, जिन्होंने देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं को किस तरीके से संभाल करके रखा। और इन छात्र छात्राओं ने अपने परिवारों को लीडरशिप दी, अपने परिवारों की भी सुरक्षा की और रक्षा की। छोटी बात नहीं है। और इसलिए फिर देश इस उमंग के साथ पूरा खड़ा हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लहरों से घबरा कर कोई नौका पार नहीं होती। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग उलझे रहते हैं। जब कहीं दूर जाना है तो कहीं तो ताकत तो चाहिए, क्षमता तो चाहिए, मेहनत तो चाहिए, संकल्प तो चाहिए। तो लहरों से घबराकर कोई नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो जिसमें संकल्प है कभी हार नहीं सकता। मुझे भरोसा है कि ये जो जीत के मैदान में हम दौड़ रहे हैं, हमको पूरी दुनिया हमारे उस विजन को लेकर के न केवल अनुप्राणित होगी बल्कि प्रेरित होगी, और इसकी खुशबू उसी विश्व गुरु भारत की तरह पूरी दुनिया में जाएगी। मैं एक बार पुनः जो आपने ये कार्यक्रम किया और जिसमें आपका आपने संकल्प लिया और जिसमें आप अब नई शिक्षा नीति को नीचे तक ले जाना चाहते हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि कोई स्कूल ऐसा न छूटे जिस पर एनईपी में अभी गोष्ठी ना हो, उसका प्लान ना हो। हर विद्यालय अपना एक टास्क फोर्स बनाए, प्रिंसिपल
आज आपने बहुत महत्वपूर्ण 3, 4, 5 अध्यापकों का एक टीम बनाई। मैं जरूर चाहूंगा कि आप सीबीएसई बोर्ड के जितने भी हैं, अगली बार हम उन टास्क फोर्स के जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोग होंगे उनके साथ एक संवाद करेंगे। हर 3 महीने में वो टास्क फोर्स सीबीएसई बोर्ड को किस तरीके से अपनी प्रगति दे सकती है। मैं जरूर चाहूंगा कि देश के आपके जो सीबीएसई बोर्ड के ये स्कूल है, ये पहले कदम पर आ करके उस नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए आए और देश को बताएं कि हाँ, ये है ताकत नई शिक्षा नीति की। मैं एक बार पुनः आपको सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद महोदय। महोदय, आपके द्वारा दिखाई गई दिशा का अनुसरण सभी सहोदय संकुल करेंगे। अब मैं डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल, निदेशक शैक्षणिक सीबीएसई को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, अध्यक्ष सीबीएसई श्री मनोज आहूजा जी, मेरे प्रिय सहकर्मियों और बोर्ड के अन्य अधिकारियों, देश विदेश के विद्यालयों का नेतृत्व कर रहे स्कूल प्रमुखों और अन्य जो भी यह लाइव कार्यक्रम ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं और उनके योगदान को अभी स्वीकार करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए निरंतर कार्य किया है। इस कार्यक्रम में देश और विदेश के सभी सक्रिय सहोदय विद्यालय संकुलों को रिप्रेजेंट करते हुए लगभग 1000 प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं। उससे अधिक स्कूलों ने यह कार्यक्रम ऑनलाइन से देखा है। सीबीएसई के ओर से मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी को सम्मान प्रकट करता हूं और उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में भी इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की है। महोदय, आज हमें बुनियादी स्तर पर नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए आपके विचारों, ठोस सिफारिशों और उपयोगी फ्रेमवर्क को सुनने समझने का अवसर मिला है। आपके विचारों ने न केवल हमारा ज्ञानवर्धन किया बल्कि एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जमीन पर उतारने के लिए सीबीएसई परिवार एक साथ काम करेंगे। हम अध्यक्ष सीबीएसई को विशेष धन्यवाद देते हैं जो हमें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं और हमारे लिए एक मजबूत मार्गदर्शक के रूप में तैयार रहते हैं। महोदय, मैं सराहना की गहरे भाव के साथ आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह कार्यक्रम की सफलता समूची योजना और इसके लिए बहुत सारे लोग ने काम किया है। मैं सीबीएसई का सभी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, रीजनल ऑफिसर्स, हेड्स ऑफ सीओईज, ऑल द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ एकेडमिक यूनिट, पब्लिक रिलेशंस यूनिट, हिंदी सेल, एडमिनिस्ट्रेशन, सबको धन्यवाद देता हूं। आज सबने अपना योगदान दिया और ये कार्यक्रम सफल बनाया। एनईपी के कार्यान्वयन के लिए इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए मैं सभी स्कूल नेतृत्वकर्ताओं का निष्ठापूर्वक आभार प्रकट करते हैं। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं पुनः इस आयोग को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं और हमारे साथ बने रहने के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम के अंत में डीएवी पुष्पांजलि इनक्लेव के विद्यार्थी राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।
कोई साल प्यार ही नहीं करता, मतलब अपना बजट में प्यार नहीं होता उसके जी मैम। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सभी अतिथियों का